A very good morning to everyone. In today's lecture, we are going to understand steps in radical substitution. As per the last lecture, we about the different type of reactions shown by the chemical compounds in a chemistry. So here, in the last lecture, we discussed about the different type of reaction. Okay, this is the addition reaction, elimination reactions, the substitution reaction, rearrangement reaction. Okay, and in last lecture also we discussed about the SN2 reaction. So this is the SN2 is a mechanism. SN2 is a mechanism for the nucleophilic substitution. So for the substitution, this mechanism is SN2. I think we are here in the last lecture. So let's begin. SN2 reaction is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction means there are the involvement of two reagents in the reaction. So that's why it is called as a bimolecular. There's two reagents involved in the reaction, and that two reagents decide the rate of the reaction. Okay, means simply we can say the rate of the reaction is dependent upon the concentration of two molecules. So that's why it's known as bimolecular. And there is a nucleophilic substitution is there. So that's why bimolecular nucleophilic substitution reaction. This is also called as a second order nucleophilic substitution reaction, because the rate is depend on the concentration of both reactant. Okay, so here we are seeing this reaction in which there is a hydroxy group attack on this alkyl bromide. This is the alkyl bromide. This is the alkyl bromide molecule is a reagent, and this is the hydroxide. This will come from the NaOH. Okay, so NaOH is one of the reagent, and this is the one of the reactant. So when these two react, we get this is the product. We get this product, that is the alcohol. But this reaction is occur by the SN2 mechanism. ये reaction जो है, this pass through the SN2 mechanism, that is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. This reaction is a concerted mechanism. Then there is no intermediate is there. Attack of nucleophile and departing of leaving group from this reagent simultaneously is occur. Then bond breaking and making simultaneously in the molecule in the reaction. So such a reaction is known as to be the concerted reaction. There is no any pause. There is no any intermediate form. Means the attack of nucleophile from this backside and from the new bond in between to carbon and oxygen, and simultaneously the CBr bond is breakdown. Okay, so we can see this new CO bond is formed here, and this CBr bond is breakdown. That means bond breaking and making process simultaneously. So such a process is such a reaction is known as SN2 reaction or concerted reaction. Okay, so this whole reaction we can see there is only one transition state is there. Only one transition state, and in this transition state we can see here there is no totally bond breaking and making occur. Okay, but there the process is going on one step behind for the breaking and making a bond. So we can see there is a dotted line. The dotted line indicate, यहाँ पे जो हमें dotted line दिख रही है, ये indicate करती है कि ये bond बना भी नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है. ऐसी भी बात नहीं है. मतलब ये जो है यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है और यहाँ का बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है. ऐसी कंडीशन हमें ट्रांजिशन स्टेट में देखने को मिलती है. ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है यहाँ से नया बॉन्ड CO का बॉन्ड जो है बन जाएगा और यहाँ से CBr जो है ये ब्रेक डाउन होके बाहर निकल जाएगा एज अ ब्रोमाइड. ओके, और ये जो ब्रोमाइड होता है इट इज एन डिपार्टिंग ग्रुप. ये जो है ये अच्छा डिपार्टिंग ग्रुप होता है. ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे जो रिएक्शन होके हमें ये जो प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल का, ये अल्कोहल का प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है, दिस इज फॉर्म बाय द SN2 मैकेनिज्म और आल्सो कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन. ओके, और एक चीज अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें
दो रिएजेंट, एक NaOH एक रिएक्ट हुआ, एक रिएक्टेंट, और दूसरा जो है अपना ये अल्किल ब्रोमाइड है या मिथिल ब्रोमाइड, ये जो है इसका स्पेसिफिक नाम, तो मिथिल ब्रोमाइड है और यहाँ पे अल्कली है यानी कि NaOH है। तो ये एक स्पेसीज हुई, ये दूसरी एक स्पेसीज हुई, इन दोनों की रिएक्शन हुई और इन दोनों का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करता है कि उसका रेट क्या होगा। क्या डिसाइड करता है? रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन डिसाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस रिएक्शन का जो रेट होता है इट डिपेंड ऑन दिस टू रिएक्टेंट। ओके, तो टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी कि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हुए, दो मॉलिक्यूल हुए, दो मॉलिक्यूल डिसाइड करेंगे कि इस रिएक्शन का रेट क्या है। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को कहते हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है कि बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये SN2 मैकेनिज्म है। देन सेकंड जो है स्टेप्स इन रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सिंपल सी स्टेप्स होती है कि हम लोगों को पता है कि चेन रिएक्शन ऑफ अल्केन, है ना, चेन रिएक्शन ऑफ अल्केन हमें पता है, और ये जो है इसमें हेलोजिनेशन की रिएक्शन हमने स्टडी की है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन बाय द चेन मैकेनिज्म। चेन मैकेनिज्म यानी कि क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में कोई एक रेडिकल फॉर्म हो जाता है, जो कि रेडिकल फॉर्म होने के बाद उस रिएक्शन को स्टार्टअप कर देता है ना, इनिशिएशन हो जाता है वहां पे। और इनिशिएशन कब होता है? जब वहां पे कोई रेडिकल फॉर्म होता है, और रेडिकल जो बनता है ये बनने की प्रोसेस होती है होमोलिटिक बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, होमोलिटिक फॉर्मेशन कहते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जब होता है तब वहां पे ये जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो उसमें हमें रेडिकल वहां पे मिलता है। ठीक है ना? तो ये जब रेडिकल हमें मिलेगा तब रेडिकल ये जो है ये रिएक्शन को इनिशिएट कर देता है, इनिशिएट करना यानी उस रिएक्शन को स्टार्ट कर देता है। और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में सेकंड स्टेप होती है उसमें, जो कि प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन मतलब इसमें जो रिएक्शन है वो रिएक्ट हो जाती है, जो रिएजेंट के साथ में जो रिएक्टेंट के साथ में वहां पे उसकी रिएक्शन होनी है उसके साथ वो रिएक्ट हो जाता है कि नहीं? और रिएक्ट होने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन, कंटिन्यूअसली जाती रहती है। इसमें हर स्टेप में अलग अलग रेडिकल वहां पे हमें बनते हुए दिखाई देते हैं, और वो रिएक्शन जो है ये जो उसमें रेडिकल बन रहा है वो फिर से रिएक्ट होता जाएगा, फिर से नया प्रोडक्ट बनेगा, फिर से रिएक्ट होगा रेडिकल, फिर से रेडिकल का जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूस होता रहता है। तब जाके हम देखते हैं कि ये जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है, और मीथेन का जब हम ये इस तरह से रेडिकल मैकेनिज्म से हेलोजिनेशन जब हम करते हैं तो टोटल यहाँ के जितने भी हाइड्रोजन होते हैं यहाँ के, ये टोटली रिप्लेस हो जाते हैं क्लोरीन से। ठीक है, और ये ऐसा क्यों होता है कि हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन जो है यहाँ का हर एक एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता जाएगा। तो जब यहाँ के पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है CCl4। तो ये जो CCl4 है ये जब तक नहीं बनता तब तक रिएक्शन कंटिन्यूस होती रहती है। और एक दूसरी चीज होती है इसमें, जब कभी दो रेडिकल इस रिएक्शन में, माना कि यहाँ पे एक क्लोरीन है और दूसरा एक क्लोरीन है रेडिकल, और ये जब दो रेडिकल जो है ये कंबाइन हो जाएंगे इस तरह से, तो कंबाइन होने के बाद यहाँ पे जो है ये बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जो कि होगा Cl2 मॉलिक्यूल। अब ये Cl2 मॉलिक्यूल जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता हुआ हमें दिखता है। तो इस तरह से ये जो स्टेप जो होती है रेडिकल मैकेनिज्म में, इसको हम समझ सकते हैं। और ये जो हो रहा है ना, ये जब इस रिएक्शन में होगा उस टाइम ये रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वहां पे ये रिएक्शन जो है इट बिकम टू बी स्टॉप, है कि नहीं? ये यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल ही रिएक्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है, इसमें हो सकता है
कि दो मिथिल रेडिकल भी कंबाइन हो जाएंगे और इनको कंबाइन होने के बाद वहां पे हमें इस तरह से एक मीथेन मॉलिक्यूल बनते हुए भी दिख सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंट स्टेप्स जो होती है हमें देखने को मिलती है रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देन नेक्स्ट इज अ सेकंड इज अ पोलर रिएक्शन। अब दो टाइप की रिएक्शन हम देखने वाले हैं यहाँ पे। ये एक तो इसमें रेडिकल बनने से रिएक्शन हो रही है कि नहीं, और दूसरी जो रिएक्शन जो है होती है जिसमें आयंस बनते हैं, आयंस होते हैं अलग अलग या अलग अलग पोल होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पोल होते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसे हम पोलर रिएक्शन कहते हैं, है ना। मतलब जो मॉलिक्यूल होगा जिसमें पोलैरिटी होगी, अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इस वजह से वहां पे भी रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन रहेंगे इसे हम पोलर रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा है जिसमें हमने देखा कि SN2 रिएक्शन में जो है ये जहां पे मिथिल ब्रोमाइड था, है कि नहीं, और इस मिथिल ब्रोमाइड के साथ क्या हुआ, NaOH की रिएक्शन हुई, है ना। NaOH की यहाँ पे रिएक्शन हमें देखने को मिली, ठीक है, NaOH। अब NaOH जो है, इस NaOH में क्या हो रहा है, यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो ये यहाँ पे पोल हमें दिख रहे हैं, इस तरह से आयंस होते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। और ये जो मॉलिक्यूल है मिथिल ब्रोमाइड, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे CBr बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है कि नहीं। और ये CBr बॉन्ड में हम देखेंगे कि Br जो है इट बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है कि नहीं। Br जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो एज कंपेयर टू कार्बन, है कि नहीं। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है इट शिफ्टिंग टुवर्ड द ब्रोमीन, शिफ्टिंग टुवर्ड द ब्रोमीन, तो देयर इज अ डेल नेगेटिव चार्ज ऑन द ब्रोमीन, और ये जो कार्बन होता है देयर इज अ डेल पॉजिटिव चार्ज। So we can see now in this molecule there are two poles, one is positive pole and one is negative pole. So this is the polar molecule, and this polar molecule is go through the reaction called as a polar reaction. Okay, so we can see this first statement is there, molecule can contain the local unsymmetrical electronic distribution due to the different electronegativities। मतलब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें दिख रही है यहाँ पे, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो रही है कि नहीं। Then this counts the partial negative charge on the atom and compensating partial positive charge on the adjacent atom, है कि नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल। Then more electronegative atom has a greater electron density। तो जहां पे हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन इज अ मोर electronegative atom, so bromine pull the electron from this bond toward itself, है कि नहीं। तो ये जो CBr बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, तो CBr बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रोमीन के न्यूक्लियस के पास रहेंगे, इसके न्यूक्लियस का उस पर ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन पे डेल नेगेटिव चार्ज हम दे सकते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज। तो ये है CBr बॉन्ड एज अ पोलर बॉन्ड। ओके, तो इस तरह के बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल जब हमें देखने को मिलता है जिसे हम पोलर बॉन्ड कहते हैं, तो ये मॉलिक्यूल जब रिएक्शन जाता है रिएक्शन के अंडर में, तो वहां पे हम उसको पोलर रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जब किसी मॉलिक्यूल में यहाँ पे हमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन मतलब हैलोजन, है ना, इस तरह के एलिमेंट अगर हमें देखने को मिलते हैं, एटम देखने को मिलते हैं अटैच टू कार्बन, तो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल दिस एटम ऑक्सीजन, दिस इज द 3.08 जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जो नाइट्रोजन होता है दैट इज द नाइट्रोजन हैविंग 3.08 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन जो है ये 3.44 मतलब 44 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और जो फ्लोरीन होता है जिसे हम 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो करीबन जो होती है 3.98 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि नियर अबाउट 4, है कि नहीं। और ये जो होता है कार्बन, तो इसकी होती है 2.55, है कि नहीं।
तो हमें यहाँ पे इजीली समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन की, ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कार्बन एटम, है कि नहीं? तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इस वजह से हमें अब इजीली समझ में आएगा कि ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये मोर देन 3 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लेस देन 3 है, तो डेफिनेटली दिस एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, they having a more electronegativity, so they strongly attract the bonding electron toward itself than carbon. Okay, so that's why there's more electron density you can see toward the center of nitrogen and oxygen and all chlorine center. Okay, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाली जो साइड रहेंगी मॉलिक्यूल की, उस साइड में डेल नेगेटिव चार्ज देना है हमें, डेल नेगेटिव, बिकॉज देयर इज अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन। और जो ये वाला पार्ट होता है जिसे हम डेल पॉजिटिव सेंटर कहते हैं। ओके, तो ये जो होता है इस तरह से हम पोलर रिएक्शन को कह सकते हैं। और पोलर रिएक्शन में बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल वहां पे होते हैं जिसमें दो पोल हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम पोलर पोलैरिटी जो होती है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, सिंपली हमें क्या समझना है, पोलैरिटी, पोलैरिटी यानी कि दो पोल क्रिएट होना। दो पोल क्रिएट क्यों होते हैं मॉलिक्यूल में? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से जो सेंटर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो सेंटर में होने चाहिए, क्योंकि बॉन्ड तो दो न्यूक्लियाई के बीच में बन रहा है, तो सेंटर में होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग दिस सेंटर। Okay, and in such a condition you will see there are two different pole forms. Okay, so let's see in alcohol molecule there is a carbon and oxygen bond is there, and I already told you the oxygen having a 3.44 electronegativity, 3.44, okay, and this carbon having a 2.55. Okay, so that simply you can see there is a difference in electronegativity, and this oxygen having a more electronegativity, so that's why there is a del negative charge toward this oxygen atom, and there is a del positive charge toward the carbon atom. Okay, and these all are the other than carbon, they having a more electronegativity. This element is treated as a hetero atom, it's treated as hetero atom. Okay, जिसमें होता है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड halogen family. Okay, then alkene, so you can see this is the alkene. In alkene there are both are the carbon bonded with the double bond, both are the carbon, they bonded with the double bond, and you can see both carbons are same, so that's why there are symmetry. Okay, and there is no positive or negative pole in this molecule, so that's why this molecule is known as a non-polar molecule. इस तरह के मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। Then alkyl halide, this molecule you can see there is one carbon, this is the blue color carbon, there is del positive charge and X having a negative charge. X is more electronegative, this is the halide is a halogen family. Okay, starting from the 3.98, or simply you can say this is the 4 for the fluorine, electronegativity for the fluorine, and then it decrease when you move from top to bottom in the halogen family, but their electronegativity always greater, halogen family electronegativity always greater than carbon. Okay, so that's why there is always, you can see if this type of bonding is there, see X bond is there, so you can say there is a del negative charge on X and positive charge on the carbon due to the different electronegativity, and this bond becomes to be the polar. Then in amine molecule, again there is a nitrogen is more electronegative atom, that is a 3.08 electronegativity is there, 3.08, and this carbon having 2.55, so that's why again we can say this is the more electronegative atom. Okay, and that's why there is a polarity in this molecule. Then ether molecule, you can see here there is a oxygen, and on the both side you will see there is a positive charges.
Okay, so that's why their polarity due to this CO bond, whatever the polarity is there in between to the CO bond, it's cancelled by the polarity of this CO bond. है कि नहीं? अब इसकी जो पोलैरिटी होगी, इसकी पोलैरिटी को ये वाला बॉन्ड की जो पोलैरिटी होगी, ये इसको कैंसिल कर देंगे. So that's why this acts as to be non-polar molecule. And thiol molecule is like an alcohol molecule. This is the thiol. But just in case of alcohol, there is a OH bond, and in thiol there is a SH bond. Okay. Again, this sulfur is belongs to the oxygen family, and it's having a more electronegativity than carbon. That's why this bond becomes to be polar bond. Then nitrile bond is there. They have been triply bonded in between the carbon and nitrogen. And this nitrogen, obviously, this is a more electronegative atom than carbon, and that's why this bond becomes the polar bond. Then Grignard reagent, you know that this is RGX, is the Grignard reagent, or it may be the aliphatic or aromatic. This is the RMGX. You know very well this Grignard reagent. So that R always become to be the negative. Okay, and this metal, that is magnesium, is a metal. It's having the positive charge. Okay, so you can see this is a polar bond, but there is a differentness is there. This carbon having a negative charge. इसमें जो है हमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनते हुए दिखाई दे रहा है ना. बाकी के सारे केसेस में हम देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, है कि नहीं. अब इस केस में हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है. तो ऐसा क्यों हुआ? इसका मीनिंग क्या है कि जो कार्बन है ये 2.55 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जो मैग्नीशियम होता है इट बिलोंग टू द सेकेंड ग्रुप, है ना. सेकेंड जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, वहां से बिलोंग करता है, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है. इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने वाला, है कि नहीं. इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन खुद की इधर नहीं लेगा, तो इस पे हम ऑलवेज इट गिव्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल. ओके, तो कार्बन जो है इस comparatively carbon become a more electronegative, so that's why there is a del negative charge on the carbon center. Okay, then alkyl lithium, this is argo organolithium. Okay, there is a metal again like a magnesium, there is a lithium. Okay, both are the metal, both are the electropositive, and that's why this carbon becomes to be negative, because the electronegativity of carbon is greater than this metal. Okay, यही कंडीशन जो है इन सारे मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग जो है ये डिफरेंट होती है. इन सभी केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे मेटल उसके साथ में बॉन्डिंग में है. ठीक है. अब वैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है. तो ये सारे जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पोल, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से वहां पे देखने को मिलते हैं. तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो होंगे उसको हम कहेंगे कि ये सब पोलर मॉलिक्यूल है. ओके, तो ये इस तरह से रिएक्शंस होती है. अब पोलर मॉलिक्यूल को हम और 3D कंडीशन में देखेंगे कि किस तरह से होता है कि नहीं. अब ये जो है एग्जांपल ऑफ पोलर रिएक्शन, एडिशन ऑफ HBr ऑन इथिलीन मॉलिक्यूल, तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे जो थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का. बट यहाँ पे एक सिंपली हमें समझना है कि पोलर मॉलिक्यूल किस तरह से होता है. अब देखो, ये जो है अल्कीन है ना, अल्कीन. अब इसमें जो है यहाँ पे सिमेट्री नजर आती है आपको. सिमेट्री यानी कि इसको अगर आपने ऐसे कट कर दिए, इक्वली कट हो जाएगा, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर, है कि नहीं. मीन देयर इज अ सिमेट्री. ओके, और ये जो यहाँ पे इसमें कोई पोलैरिटी नहीं दिख रही है हमें, इस वजह से इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं. तो ये जो है ये पोलर, ये जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. ठीक है. और इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे HBr मॉलिक्यूल है, और ये देखो यहाँ पे इस साइड में जो है ये पोर्शन छोटा है, और इस साइड का पोर्शन देखो कितना बड़ा पोर्शन है कि नहीं. तो ये जो है इंडिकेट साइड में बहुत
है, क्योंकि ये जो है क्लोरीन या ब्रोमीन जो है ये बड़ा एटॉमिक साइज में बड़ा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। Same thing is a more electronegative than hydrogen. That's है कि नहीं? तो bonded इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, है कि नहीं? और वो कौन से सेंटर में डोनेट करेंगे? वो करेंगे जो एचबीआर में जो सेंटर है जहां पे हमें दिख रहा है कि एक पॉजिटिव सेंटर है, तो वो एचबीआर को इलेक्ट्रॉन वहां पे दे देगा, है कि नहीं? तो इस तरह से होता है। ओके, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. Okay. Just 2 minutes. Within 2 minutes, I am going to end this lecture because I think other subject lecture will be the time. Our lecture time will be going to be end, and we are discussing here this polar molecule. So simply, we discussed this whole reaction in third part in detail, but here we just understand what is the polarity and how this polar molecule react and how it gives the polar reaction. So HBr addition is very simple, is there. So there is the HBr molecule. In the HBr molecule, there is a positive. This H center is a positive center, and this is the negative center. And when this add on this double bond, so you can see this hydrogen, it goes to one of the carbon, any one carbon, and this chlorine goes on to the another carbon. Okay, so this goes on to be the another carbon. So you will see this product, it become to be this hydrogen. This hydrogen is come on this carbon, and this chlorine, this bromine is there. This is the bromine atom is there. Okay, so we can see this is the polar molecule is add. HBr is a polar molecule. This is the polar molecule, and this polar molecule you add in the alkene. So you can say this is the addition reaction of HBr in ethylene molecule, but this is the polar reaction because the polar molecule is add. Okay, so this is very simple. This ethylene is a nucleophilic in nature because there is a pi bond in between two carbon, and this pi bond is a weak bond as compared to sigma bond, and that's why it easily breaks down and gives the electron to the electrophilic species. Okay, electrophilic species. And here HBr is a polar molecule, and we can see there is a two pole, positive and negative pole in this molecule, and this del positive pole make this molecule become electrophilic, है ना? ये H पॉजिटिव जो बन रहा है ना इस साइड में, तो ये पॉजिटिव सेंटर की वजह से जो HBr मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट होता है कि नहीं? तो ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये चले जाएंगे इसको H को चले जाएंगे, है कि नहीं? तो मतलब पहले क्या होगा, ये H जो है ये ऐड हो जाएगा कोई एक कार्बन पे, है कि नहीं? और कार्बन पे जब ऐड हो जाएगा तो ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये वाला जो यहाँ का H आ रहा है तो ये H यहाँ पे चला जाएगा. ओके, और जो सेकेंड कार्बन होगा वहां पे वैलेंसी एक कम होगी, तो ये जो है वहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन गया है, और रिएक्शन में एक यहाँ का जो काउंटर एंड पार्ट है इसका H का वो जो है Br नेगेटिव है. तो यहाँ पे ये जो Br नेगेटिव है इन सेकंड स्टेप
हम देखते हैं कि Br जो होता है, ये Br यहाँ पे अटैक कर देता है पॉजिटिव सेंटर पे और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमें इस तरह से मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो ये सारी थी हमारी पोलर रिएक्शन, इसको और डिटेलली हम समझेंगे। अनदर रिएक्शन का जो टाइप है ये यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, ठीक है? इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। Anybody have any query?